So I had started with the endocrine physiology, and we had discussed the general aspects, introductory part of the endocrinology. Today we will be discussing about the different mechanism of action of different hormones. What are the different mechanisms by which the different sets of hormones they are working? Okay? ये तो हमने लास्ट क्लास में देखा था ये सर. We had classified the different hormones as well. If you can remember, we had classified the different hormones depending upon the mechanism of action, है ना? Group 1 और Group 2 hormones में divide किया था ना? Group 1 hormones were lipid soluble, isn't it? वो lipid soluble थे, वो intracellular receptors उसमें होते, और Group 2 hormones क्या थे वो? उसके सेल सरफेस पे थे, okay, water soluble, and there were different subgroups as well, group 2A, 2B, depending upon the different types of second messengers, okay. ये सब हमने देखा था. What today we will see this mechanism of action of the different sets of hormones. गेट को बंद कर दो बेटा उधर, प्लीज क्लोज इट. So the different sets of mechanism, किस तरह का mechanism, how the different hormones they are working, they may act through changing the permeability, by changing the permeability of membrane permeability. Okay, membrane permeability को change करके वो directly act कर सकते, like through the ion channels. You know there are sodium channel, potassium channels, so they may act like that, action through the ion channel, ion link channels. Okay, then also where the receptors are within the cell, okay, whether it may be nuclear receptor or cytoplasmic receptor, they act through the जीन एक्सप्रेशन. ओके, ये कौन से क्लास के हार्मोन इसमें करेंगे? क्लास 1 हार्मोन, isn't it? Class 1 hormones. Okay, so those which are lipid soluble, okay, they will cross the cell membrane and they will enter into it and they will alter the gene expression, they will alter the transcription and translation, they will activate. Okay, so they will act through the intracellular receptors. And we have discussed that there are other sets of hormones which acts through the membrane, cell surface receptors, and they act through the different secondary messengers. Okay, which then after that it activates different sets of hormones, enzymes. Okay, different sets of enzymes it activates, and there is physiological actions. But there is other action as well apart from those. This is, ये जो secondary messenger बनते हैं, usually they are mediated through the G proteins. Okay, but not जिसमें G protein involved नहीं होता. Okay, they may act through enzyme linked hormone receptors. There is tyrosine kinase activation, है ना, 2D वाले जो थे उसमें, if you can remember, group 2 में क्या था, 2A, 2B, 2C, they act through the G proteins, है ना, G protein जो activation होता है, so they act through the G protein coupled receptors and by that they activate the G proteins, isn't it? 2C, and but 2D does not act through the G proteins. Okay, they activate through the tyrosine kinase enzyme, उसको activation से करते हैं, that is kinase और phosphatase. So 2A cyclic AMP के थ्रू करता है, 2B cyclic GMP, and 2C by calcium और phosphatidyl, okay, phospholipase से करते हैं. Okay, these are the different sets of hormones we had discussed earlier as well. Okay, cyclic AMP is ACTH, FSH, LH, then TSH. You can see the anti-pituitary hormones,
Then corticotrophin releasing hormone, ADH, but oxytocin 2C में आ जाता है, 2C में आता है. Okay. Then angiotensin 2, parathormone, calcitonin, then glucagon hormone, and insulin is through this hormone. Okay, tyrosine kinase के through करता है, 2D. So you have to remember. Then the first mode of action, that is through the changing the membrane permeability. Okay, so the hormone, that is the first messenger, that is the ligand, you can say. Okay, they will go and bind with the receptors. Okay, so the first messenger, they will bind with the receptor in the cell membrane. इसके receptor भी कहाँ पे होंगे? Membrane पे ही होंगे. But they are channel receptors, ion channels. Okay, and when this the first messenger bind with the receptor, there is change in the conformation. Okay, there is conformational change in the shape. Okay, in the protein, and by that it will open. This ion channel will open up or it may close up. Okay, like we have seen earlier, कौन सा रिसेप्टर होता है इस तरह से काम करता है? If you remember the neuromuscular junction, वहां पे था ना, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे. तो जैसे एसिटाइल कोलिन जाके बाइंड करता है, isn't it, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जैसे बाइंड करता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के कोलिनर्जिक साइट्स पे एसिटाइल कोलिन, व्हाट हैपेंस, इट ओपन्स अप द सोडियम चैनल्स का इन्फ्लक्स होने लगता है. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग. मोस्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स, एसिटाइल कोलिन, most of the catecholamines, especially the beta 1, okay, जो beta receptors होते हैं. So you can see here, these are the ion channels, extracellular domain, transmembrane. You can see यहाँ पे क्या है, acetyl choline आके bind कर रहा है. Then this, आ जाओ अंदर, okay, then this ion channel is opening up. So the different ions may cross this, okay, channel. So ion may move through this channel across the cell membrane. Then the other very important mechanism of action is through the gene modification, gene expression, उसको change करता है. And most the intracellular receptors, इसके receptor कहाँ पे होंगे? Receptors cell के अंदर में होंगे. It may be in the cytoplasm or maybe in the nuclear fluid. Okay, nuclear plasm में भी हो सकता है, nucleus में. Okay. So, like group 1 hormones, as we have discussed, group 1 hormones से क्या होता है? They are lipophilic, lipid soluble होते हैं, and like the thyroid hormones, then steroid hormones, then also vitamin D and retinoids. Okay, they are going to act by acting through the intracellular receptors, and these intracellular receptors may be within the साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियस. ओके, किसके न्यूक्लियस में होते हैं और किसके साइटोप्लाज्म में होते हैं? अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू एक्टिवेट द जीन एक्सप्रेशन, बोथ ऑफ दिस, बट द रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट. मोस्ट ऑफ द स्टेरॉइड रिसेप्टर्स के साइटोप्लाज्म में होते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टेरॉइड रिसेप्टर्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स स्टेरॉइड्स, ये सब के कहाँ पे होंगे? वो साइटोप्लाज्म में होंगे. ओके, वाइल ये जो थायराइड के जो रिसेप्टर्स हैं, थायरोक्सिन, विटामिन डी एंड रेटिनोइड्स, दे आर विद इन द न्यूक्लियस. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दे आर एक्टिवेटिंग द जीन एक्सप्रेशन. दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. यू कैन सी दिस इज लाइपोफिलिक हार्मोन, हार्मोन लाइगेंड है ना. ये क्या हो गया? हार्मोन एज लाइगेंड, फर्स्ट मैसेंजर. They are going to bind with the, okay, they are going to cross this membrane. They are lipophilic. ये क्रॉस कर रहा है, डिफ्यूज कर रहा है अंदर, और अंदर में देखो रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में है या इसके रिसेप्टर न्यूक्लियस में. ओके, तो ये न्यूक्लियस में जो होंगे इस पे जाके बाइंड करेंगे क्रॉस करके. एंड देन व्हाट हैपेंस दैट दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए. ऑन द डीएनए देयर इज अ वेरी स्पेशल साइट, very special site, that is called hormone responsive element. Okay, जो हार्मोन
जो हार्मोन इस पे रिसेप्टर में बाइंड किया है, इन दोनों के लिए मैक्सिमम यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स है इस एरिया पे, दैट इज कॉल्ड HRE, वेरी एक्टिव जोन, ओके, ऑन द फॉर द पर्टिकुलर हार्मोन, दैट इज कॉल्ड HRE, हार्मोन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट, ओके। तो यहाँ पे जाके बाइंड करना है, यहाँ पे बाइंड करेगा तभी ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट होगा इस हार्मोन के लिए, ओके। तो यू कैन सी हियर, इधर इट में गो इनटू द साइटोप्लाज्म, बट जो साइटोप्लाज्म में रहते हैं, व्हाट हैपेंस, वो इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं, ओके। जब ये रिसेप्टर से आके बाइंड करता है तब ये एक्टिव होता है। जब एक्टिव इनएक्टिव स्टेट में है तो उसके साथ में क्या जुड़ा होता है, HSP, हैव यू हर्ड ऑफ दिस HSP, हैव यू हर्ड ऑफ चैप्रियन प्रोटीन, सुना है चैप्रियन, नहीं पढ़ा होगा आपने, कुछ सुना होगा वर्ड तो दिस इज वन ऑफ द चैप्रियन प्रोटीन। चैप्रियन कहते हैं वो एक्चुअली वो क्या होता है, इसके जो इनएक्टिव स्टेट है उसको मिसफोल्डिंग से बचाता है, मिसफोल्डिंग से बचाता है। देयर इज अनफोल्डिंग, देयर इज फोल्डिंग, फोल्ड करेगा इनएक्टिव स्टेट में और फिर अनफोल्ड होगा, तो इसको मिसफोल्डिंग से बचाता है वो, दैट इज कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन, HSP, ये हीट शॉक प्रोटीन है, वो इसके साथ बाइंड करके रहता है इनएक्टिव स्टेट, ओके। एंड जैसे इसके साथ आके बाइंड होता है ये एक्टिव होता है, अनफोल्ड होता है, ओके, और देन इट इज ट्रिगर्ड, ये इधर हार्मोन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट इधर आकर ट्रिगर होता है इधर, ओके, रिक्रूट होता है इधर। सो यू कैन सी हियर ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन, हार्मोन, हार्मोन इधर क्रॉस किया, डिफ्यूज हो गया, इंटरनलाइजेशन हो गया, देन रिसेप्टर इज गोइंग टू, ये इनकमिंग हार्मोन से रिसेप्टर आके बाइंड किया, देन देयर इज कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, ऑब्वियसली चेंज होगा थोड़ा, एंड दिस कॉम्प्लेक्स hormone receptor complex, they are going to bind to the this special region on the DNA, HRE पे जाके बाइंड करना है, ओके। एंड जैसे इस पे आके बाइंड होगा, इससे अटैच होगा हार्मोन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट से, देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ओके, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA, isn't it, यही होता है ना ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर RNA बनता है, ओके, DNA to RNA. So there will be formation of messenger RNA, and ultimately this messenger RNA will come out of the nucleus and it will enter into the cytoplasm, and it will involve the ribosomes, isn't it, to get the formation of protein, translation process will happen, okay, transcription हुआ then translation होना है, जैसे ये प्रोटीन बनेगा what will happen, ये physiological action करेगा, okay. So this is how it is occurring. So जो थायराइड हार्मोन के वो कहाँ पे होंगे, वो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं थायराइड हार्मोन, ओके, एंड विटामिन डी के, और जितने स्टेरॉइड हार्मोन है वो साइटोप्लाज्म में रहते हैं, ओके। अल्टीमेटली दे आर ऑल इन द विद इन द सेल। देन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ action of the hormones, that is action through the formation of different secondary messengers. How it is occurring, these second messengers, they are mostly getting formed through the involvement of G proteins, isn't it, G protein activate hota hai, G protein is a very special protein, they are acting through the G protein अंदर सेल के सेल मेम्ब्रेन में होता है ये, okay, वो inactive state mode, isn't it, and it is bound to the G protein coupled receptors, okay, G protein coupled receptors। तो जो हार्मोन सेकंड मैसेंजर के थ्रू काम करना है वो जाके G प्रोटीन से जाके एक्ट करेगा, ओके, जो G प्रोटीन के थ्रू एक्ट कर रहा है GPCR पे जाके बाइंड करेगा, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और जो G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के जो इंटरनल साइट है वहां से G प्रोटीन उससे अटैच होता है, ओके। तो यू कैन सी इसमें कौन से होंगे, ग्रुप 2 हार्मोन्स के होंगे, दे आर वाटर सॉल्युबल, दे आर गोइंग टू एक्ट बाय द सेल सरफेस रिसेप्टर्स। दिस हार्मोन, ये जो हार्मोन होंगे वो रिसेप्टर होंगे GPCR पे, and then interact with G protein, and then G proteins will be activated. How they are activated?
G proteins may be stimulatory, GS कहते हैं. It may be inhibitory as well, GI. Okay, वो inhibitory भी हो सकते और stimulatory भी हो सकते. Action को stimulate भी हो सकता है cell function का, inhibit भी कर सकते हैं. So the discovery of G protein was very, very important. Okay, very important milestone to understand the cellular signaling pathway. These were very important milestone which was achieved by these two scientists, Gilman and Rodwell. They were both American scientists. One was pharmacologist, another was biochemist, and they got the Nobel Prize for this discovery of G protein action, cell signaling. Okay, in 1994, for the discovery of G protein and their role in cellular signaling. Okay, so very important figure. So this is how the G protein acts. So G protein, you can see here, this is the G protein overall. They are having three subunits, alpha, beta and gamma. Alpha subunit is the सबसे बड़ा होता है वो, larger one. Okay, and this alpha subunit, you can see here receptor है, G protein coupled receptor है. G protein किससे बाइंड होता है ये? G protein coupled receptor. You can see here, ये GPCR है, ये जो रिसेप्टर दिखा रहा है ना, this is 7-pass receptor, serpentine receptor. Okay, ये इससे बाइंड है, अंदर में इससे अटैच. Okay, and they are in inactive state. जब तक इससे आके इसका फर्स्ट मैसेंजर बाइंड नहीं करता है, हार्मोन इस पे आके बाइंड नहीं करते रिसेप्टर, तो ये इनएक्टिव स्टेट पे रहता है. इनएक्टिव स्टेट मीन्स ऑल दी सब यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर, अल्फा बीटा गामा तीनों साथ में रहते हैं, एंड दे आर बॉन्ड विथ GDP, guanosine डाइफॉस्फेट. ओके, और ये अल्फा से ही अटैच रहता है, GDP अल्फा सब यूनिट से अटैच होता है GDP. जैसे ये हार्मोन आकर बाइंड करता है, व्हाट हैपेंस, इट एक्टिवेट्स, एंड यू कैन सी हियर अल्फा सब यूनिट वो GDP के साथ था, वो कन्वर्ट होकर GTP में कन्वर्ट हो जाए, और इट इज सेपरेटेड फ्रॉम बीटा एंड गामा सब यूनिट. जैसे ही अलग हो गया ये मतलब ये एक्टिव है, इट इज इन एक्टिव स्टेट. एंड व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर सिग्नलिंग स्टार्ट करेगा, दैट इज सेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं. ट्रांसडक्शन मीन्स, ट्रांसडक्शन किसको कहते हैं? Yes, this is a part. This is a type of cellular signaling. Like एक type of energy दूसरे type of energy में convert हो रहा है. Okay, that is transduction. Okay, genomic transduction यहाँ पे. So signal transduction, signal एक change ऊपर से आया, ये different process start होगी. Okay, that is called signal transduction. तो ये अल्फा जैसे ही एक्टिव होता है वो स्टार्ट कर देता है अपना एक्शन सेलुलर सिग्नलिंग. लेकिन साथ में क्या होता है, जैसे ही एक्टिवेट होता है इट विल नॉट गो ऑन फॉर एवर. GTPase एंजाइम होता है, वो उस पर एक्ट करता है और इसको वापस GTP में कन्वर्ट कर देता है. GTP में कन्वर्ट होकर वापस आ जाएगा इनएक्टिव स्टेट. तो दिस इज हाउ इट इज एक्टिंग. ओके, एंड दिस अल्फा सब यूनिट आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ अल्फा सब यूनिट. अल्फा में भी स्टिमुलेटरी, तो G अल्फा S. ओके, G अल्फा S होता है बेसिकली, बीटा गामा सेम है. G अल्फा S that activates the adenylyl cyclase enzyme. This is another enzyme which is present in the cell membrane. Okay, likewise G alpha I. Okay, it will inhibit the adenylyl cyclase enzyme. Okay, then there are G alpha Q as well. ओके, ये एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज C को, अनदर फॉस्फोलाइपेज C, अनदर सेलुलर सिग्नलिंग सेकंड मैसेंजर सिस्टम. ओके, देन देयर इज आल्सो G अल्फा T भी होता है, ये विजन के लिए होता है. ये रॉड्स एंड कोन्स जो एक्टिवेट होते हैं वहां पे ये G प्रोटीन के थ्रू वहां पे भी एक्टिवेशन होता है. ओके, दैट इज कॉल्ड रोल इन विजन. देन G अल्फा G होता है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, टेस्ट के लिए. ओके, देन ऑल्फैक्टरी के लिए भी होता है. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अल्फा सब यूनिट्स.
So ultimately there is formation of second messenger pathways will be activated. जैसे G protein activate होगा, second messenger system activate होता है. There are different sets of second messenger system. Adenyl cyclase enzyme with cyclic AMP system. Then guanylyl cyclase with CGMP. Then phospholipase system जो अभी देखेंगे. Okay? G alpha Q वाला जो activate हो. Then there is calcium calnodilin system as well. Okay? This is all acting through the G protein. Okay? There is also non G protein के थ्रू जो एक्टिव जो टायरोसिन काइनेज से कर रहा था वो इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन. Okay? Then the adenyl cyclase cyclic AMP system. Okay? So here you can understand these are the hormones. ये कौन सा हो रहा था ये 2A, isn't it? 2A वाला था ना. तो बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन विद द रिसेप्टर, हार्मोन आके बाइंड किया रिसेप्टर पे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होगा GPCR, इस पे बाइंड होगा, इट विल एक्टिवेट द जी प्रोटीन, अल्फा 7 यूनिट अलग हो गया, isn't it? So एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन, देन व्हाट इट विल डू, जैसे अल्फा एक्टिवेट हो जाता है, जी प्रोटीन एक्टिव हो गया, it will activate the neighboring nearby enzyme that is called adenyl cyclase enzyme. इधर adenyl cyclase है, you can see, ये activate हो गया. जैसे ही activate होता है, what happens that it converts the ATP to cyclic AMP, another very important enzyme, cyclic AMP. Okay, and in the presence of magnesium here. So formation of cyclic AMP from the cytoplasmic ATP. Okay, then what will happen in eukaryotic cell? It will activate a set of different enzymes here. It will activate different kinases. Protein kinase A होता है, C होता है. So there are different kinases it will be activated. A for adenyl cyclase से हो रहा है इसलिए. It will activate this specific protein kinase. Okay, and this protein kinase activation is very important for actually phosphorylation of the protein. प्रोटीन का जब तक फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा वो एक्शन नहीं करता. ओके, फिजियोलॉजिकल एक्शन विल नॉट बी हैपन. सो व्हाट विल हैपन, जैसे साइक्लिक एमपी एक्टिव बनता है एडेनाइल साइक्लेज एक्टिव होने के बाद, इट एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम इन द यूकैरियोटिक सेल, एंड इन प्रोकैरियोटिक सेल ये क्या होता है, साइक्लिक एमपी एक्ट्स जस्ट लाइक स्टेरॉइड हार्मोन. ओके, स्टेरॉइड हार्मोन अभी हमने देखा ना, वो प्रोकैरियोटिक के लिए. सो व्हाट विल हैपन, जैसे प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है, देयर विल बी जो प्रोटीन है अंदर में, दैट विल बी फॉस्फोराइलेटेड, एंड व्हाट विल हैपन, देयर विल बी फिजियोलॉजिकल एक्शंस. ओके, एंड ऑब्वियसली दिस साइक्लिक एमपी शुड नॉट बी देयर फॉर एवर, इट हैज टू बी रेगुलेटेड. इसको डिग्रेडेशन के लिए फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम लगता है, and this is the product 5-AMP बनता है. Okay, inactive state में. So this is the way by which these enzymes TSH, ACTH, FSH, LH, okay, 2A group का जो है, angiotensin 2, then ADH का स्पेशली जो V2 रिसेप्टर होता है, ADH में भी दो टाइप होते हैं, V1 and V2. Do you know that ADH has two types of function. एंटीडायरेटिक हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, है ना, isn't it? But there another function, it is also called vasopressin भी कहते हैं ना इसको, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है. सो यू कैन सी हियर ADH का जो V2 एक्शन है वो इसके थ्रू हो रहा है. ओके, V1 एक्शन दैट इज वैसोप्रेसिन एक्शन. ओके, वो आपका डिफरेंट सेट से होता है, विल सी. ओके, सो यहाँ पे जो वैसोप्रेसिन एक्शन जो हो रहा है, दैट इज द जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो V2 के थ्रू, इसके थ्रू हो रहा है, साइक्लिक एमपी के थ्रू, एडेनाइल साइक्लेज साइक्लिक एमपी पाथवे. ओके, सो 2A हार्मोन्स में है ये. देन अनदर सेट्स ऑफ सेकंड मैसेंजर सिस्टम, दैट इज guanylyl cyclase cyclic GMP system. Guanylyl cyclase cyclic GMP.
2B वाले जो थे, 2B वाले में कौन से थे? नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ANP. ओके, दिस इज एक्टिंग थ्रू दिस सिस्टम गुआनिलील साइक्लेज. एडेनाइल साइक्लेज है वहां पे, यहाँ पे एक्टिवेट क्या कौन सा होगा? गुआनिलील साइक्लेज होगा. यू कैन सी हियर रिसेप्टर हार्मोन आकर रिसेप्टर से बाइंड किया, जी प्रोटीन से ही बाइंड करते हैं. ओके, एंड यू कैन सी हियर यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है. ओके, जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा. एक्टिवेट होने के बाद वो साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट होगा. वो जीटीपी से साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, गुआनिल साइक्लेज एक्टिवेट होने के बाद जैसे जी प्रोटीन एक्टिव हुआ, दैट एक्टिवेट द गुआनिल साइक्लेज एंजाइम. वहां पे एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे गुआनिल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ. एंड व्हेन द गुआनिल साइक्लेज एक्टिवेटेड, इट causes the conversion of GTP to cyclic GMP. है ना, cyclic GMP में कन्वर्ट हो रहा है. And this cyclic GMP, it will activate the different kinases. Okay, यहाँ पे प्रोटीन काइनेज, वहां पे कौन से थे? प्रोटीन काइनेज ए कर रहे थे, है ना. यहाँ पे क्या है? प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करते हैं. वहां पे प्रोटीन काइनेज ए एडेनाइल साइक्लेज है, यहाँ पे गुआनिल साइक्लेज. प्रोटीन काइनेज जी, activation of cGMP dependent kinases, that is protein kinase, and also phosphatases. And what will happen? जैसे kinase activate होगा, there will be phosphorylation of intracellular proteins, and there will be physiological actions. Phosphoproteins बनते हैं and there will be physiological actions. Okay? And this is important in vision. As I have told you, this is important in vision. Okay, cGMP. बोथ रॉड्स एंड कॉन्स ये सीजीएमपी के थ्रू काम करते है ना. जो टी जो वहां पे दिखा रहा था वो अल्फा टी करके ना, ये अल्फा टी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट इन विजन. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट mechanism of action via the another second messenger. Okay, that is IP3 dark system बोलते हैं, inositol triphosphate diacyl glycerol system. Okay, and this is within the group 2C hormones, है ना. ग्रुप 2C hormones में कौन से थे? if you can remember, yes, ऑक्सीटोसिन, yes, और देखो ये ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, देन TRH, देन वेसोप्रेसिन. V1 क्या होता है? जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट होता है, V1 है ना, वेसोप्रेसिन का, वो V1 के थ्रू हो रहा है. और V2 वाला वो रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू हो रहा है, V2 रिसेप्टर के थ्रू हो रहा है. सो V1 इज एक्टिंग थ्रू दिस IP3 डार्क सिस्टम. ओके, एंड ऑल्सो कैटेकोलामाइंस जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर हाउ इट इज वर्किंग. You can see these are the different hormones when they come and bind to the GPCR, G protein coupled receptor. यहाँ पे भी bind करेगा G protein coupled receptor. G protein active हो जाएगा, अल्फा सब यूनिट अलग हो जाएगा GTP के साथ, isn't it? And that will be activated. That will activate another very important enzyme within the membrane, that is called phospholipase C. है ना, phospholipase C को activate करता है. और ये phospholipase C ये एक्टिवेट जैसे होता है, इट कन्वर्ट्स PIP2 फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल बाइफॉस्फेट, है ना. ये सेल का कंटेंट है सेल मेम्ब्रेन में, है ना, इसका कंपोजिशन में फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल बाइफॉस्फेट इनटू 2 वेरी एक्टिव मॉलिक्यूल्स. 2 एक्टिव एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, इसको डिग्रेड होने से 2 एक्टिव मॉलिक्यूल बनते हैं. ओके, दैट इज IP3 डार्क सिस्टम बोलते हैं. इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट and diacyl glycerol pathway. Okay, तो जैसे ही IP3 एक्टिव होता है, बनता है, what happens that it goes to the endoplasmic reticulum, okay, and also the mitochondria as well. What it causes? It causes the release of calcium from that endoplasmic reticulum. Okay, उसके अंदर में स्टोर होता है ना endoplasmic reticulum में कैल्शियम भी होता है. तो वहां से ये क्या करता है? कैल्शियम का रिलीज कराता है. ओके, सो कैल्शियम गेट्स रिलीज फ्रॉम हियर, कैन सी हियर,
कैल्शियम रिलीज हुआ, then there will be cellular response. Then what happens that this diacylglycerol, it activates the another protein kinase. वहाँ प्रोटीन काइनेज ए था एडेनाइल साइक्लेज में, अभी क्यों आ रहा है? वैन से आ रहे थे उधर से, सारे वैन से आ रहे. चलो इसमें एक दो जना होंगे, बाकी तो साथ में होंगे, आई नो दैट. चलो कोई बात. So we are discussing here how the different hormones they are acting, how they are mediating the different cellular responses. Okay, this is a very important topic actually to understand the physiology. है ना, ये बाद में आपको बहुत जगह हर जगह ही आएगा इनफैक्ट. So we are here that different second messenger के थ्रू काम कर रहे हैं, जी प्रोटीन के थ्रू जो काम कर रहे हैं हार्मोन. So here the second messenger is कौन सा हो गया? IP3 DAG. Okay, IP3 DAG system. Okay, so जैसे ये हार्मोन आकर रिसेप्टर से बाइंड किया, जी प्रोटीन गेट्स एक्टिवेटेड एंड दैट जी एक्टिवेटेड जी प्रोटीन विल ये क्या करेगा? फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम को एक्टिव करेगा एंड दैट एक्टिवेटेड फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम इट विल कन्वर्ट फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल बाइफॉस्फेट into two very active molecules, that is inositol triphosphate and diacylglycerol. What the inositol triphosphate will do? It will cause the release of calcium from endoplasmic reticulum or mitochondria. Okay, और DAG वाला क्या करेगा? It will activate another tyrosine kinase enzyme. Okay, tyrosine kinase enzyme C. Okay, यहाँ पे tyrosine kinase C प्रोटीन को, इनएक्टिव प्रोटीन था पहले, जैसे ये DAG बनता है ये इसको एक्टिवेट करेगा. जैसे ही एक्टिव होगा प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करते हैं, इट कॉजेज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर फंक्शनिंग, सेलुलर एक्शन. ओके, सेल का रेस्पॉन्स होगा. ओके, एंड डाग अल्टीमेटली ये क्या होता है? ये एराकिडोनिक एसिड में मेटाबोलाइट्स बनते हैं, डिग्रेड होते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस करते हैं. ओके, सो दिस इज अनदर very important mechanism by which it is acting. Then there is also another way that is called calcium calmodulin system. ये कैल्शियम बाहर आता है, कैल्मोडुलिन कहाँ पे होता है? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, यू नो, कैल्मोडुलिन कहाँ पे? इन द स्मूथ मसल्स. स्केलेटल मसल में कौन से है? इन द स्केलेटल मसल व्हाट इज द कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन? यस, खड़े हो जाओ एस्पेक्ट. यस, हाँ तुम्ही को बोल रहा हूँ. व्हाट इज द कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन स्केलेटल मसल? अच्छा, और स्मूथ मसल में तो बता रही थे अभी, पहले उसी को बताया, कैल्मोडुलिन. कैल्मोडुलिन होता है बट. तो वहां पे भी क्या होता है कि एंजाइम एक्टिवेट होता है, फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम, है ना, वहां होता है ना. सो व्हाट हैपेंस दैट हियर यू कैन सी हार्मोन्स दैट एक्ट थ्रू दिस सिस्टम, दे आर आल्सो इंक्लूडेड. दिस ग्रुप 2C में ही आ रहा है. ओके, यहाँ पे क्या होता है? ये अल्फा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से आकर एक्टिव हुआ, इट एक्टिवेट्स. ये क्या हो रहा है? ये कैल्शियम का एंट्री करा रहा है. आपको क्या कर, बाहर से भी कैल्शियम का एंट्री कराता है. ओके, बाहर से भी दो तरह से कैल्शियम आ रहा है इसमें. एक तो अंदर से रिलीज हो रहा है स्टोर से, एक बाहर से जो कैल्शियम चैनल है उसको भी एक्टिव करता है. ओके, जो मेम्ब्रेन पे जो कैल्शियम चैनल्स है उसको भी ओपन अप करता है. सो यू कैन सी दिस इंक्रीज कैल्शियम एंट्री वाया द मेम्ब्रेन कैल्शियम चैनल्स. जो मेम्ब्रेन में कैल्शियम चैनल है उसको भी एक्टिवेट करता है. एंड ऑल्सो देयर इज इंक्रीज कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, एंड व्हाट हैपेंस दैट अल्टीमेटली देयर इज इंक्रीज इन कैल्शियम. कैल्शियम अंदर में ज्यादा हो गया, तो इट विल एक्टिवेट द कैल्मोडुलिन. कैल्शियम कैल्मोडुलिन से जाके बाइंड करेगा, कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स.
इनएक्टिव कैल्शियम को एक्टिव कैल्शियम में बनाते हैं एंड अल्टीमेटली जो कैलमोडुलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होते हैं उसको एक्टिव करते हैं, है ना, प्रोटीन काइनेज, एंड अल्टीमेटली दिस प्रोटीन विल बी फॉस्फोराइलेटेड, ओके, एंड देयर विल बी सेलुलर रिस्पॉन्स. This is another very important action. This is not through the G protein. ये important याद रखना है, जो 2D वाले होते हैं, है ना, it is non G protein mediated. This does not require the G protein. Okay. इसमें mainly आपको insulin and different growth factors. Okay. Growth factors जितने होते हैं वो tyrosine kinase के through होते हैं. Okay. So you have to understand here that these receptors, इसके जो सेलुलर, ये भी मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है और इंट्रासेलुलर डोमेन. लेकिन इसके जो इंट्रासेलुलर डोमेन होते हैं उसमें फॉस्फोराइलेशन साइट्स होते हैं. ओके, फॉस्फोराइलेशन साइट्स है, आउटो फॉस्फोराइलेशन साइट्स, यू कैन सी टायरोसिन आउटो फॉस्फोराइलेशन साइट्स होते हैं. ओके, so as the hormone binds with the receptor like insulin, take the example of insulin, like growth factor भी चीज होता है, other growth factors इसके थ्रू होते हैं. अब इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, एक तो एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, एक इंट्रासेलुलर डोमेन, इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्मिक डोमेन. तो इस डोमेन में क्या होता है, देयर इज टायरोसिन साइट्स, यहाँ पे टायरोसिन मॉलिक्यूल होते हैं, अल्टीमेटली फॉस्फोराइलेशन कराना है. ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये इस पे रिसेप्टर आके बाइंड करता है, देयर इज ऑटो फॉस्फोराइलेशन, जैसे आके बनता है यहाँ पे ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो जाता है. ओके, दे आर इंडिपेंडेंट, उसको फॉस्फोराइलेशन के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, उसको बाइंड किया वो अपने आप एक्टिव हो जाता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन. ओके, देयर इज प्रोटीन टायरोसिन काइनेज साइट है यहाँ पे, एंड बट दे आर ऑटो फॉस्फोराइलेटेड. ओके, एंड जैसे ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है, देयर इज जो अंदर में जो प्रोटीन के सबस्ट्रेट है वो फॉस्फोराइलेट हो जाती है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन रेजिड्यूज. ओके, जैसे फॉस्फोराइलेशन होगा देयर विल बी एक्टिवेशन, एंजाइमेटिक एक्टिवेशन. बट देयर इज अनदर, दिस इज डिफरेंट, लाइक ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, लेप्टिन, डिफरेंट साइटोकाइन हार्मोन्स, इरिथ्रोपोइटिन. जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन की जरूरत, isn't it? एंड प्रोलैक्टिन, लेप्टिन, साइटोकाइन, उस केस में क्या होता है, इसके भी जो साइड्स होते हैं, इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो नॉन जी मेडिएटेड, जी प्रोटीन इसमें नॉट रिक्वायर्ड. इसमें भी क्या है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, ट्रांसमेम्ब्रेन एंड इंट्रासेलुलर डोमेन. लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऑटो फॉस्फोराइलेशन साइट्स नहीं है, अपने आप जैसे बाइंड किया अपने आप फॉस्फोराइलेट नहीं होगा. इसको फॉस्फोराइलेट करने के लिए क्या है, देयर इज अनदर प्रोटीन विच इज रिक्वायर्ड. इसको क्या कहते हैं, जैक एंड स्टैट पाथवेज. हैव यू हर्ड ऑफ दिस, जैक स्टैट पाथवेज, जैक काइनेज एंड स्टैट काइनेज. ओके, तो जैक इज जैनस काइनेज बोलते हैं. ओके, जैनस काइनेज. तो इसको क्या कहते हैं, इसको फॉस्फोराइलेशन के लिए एक अनदर प्रोटीन को रिक्रूट करता है, that is called Janus kinases. Janus kinase अब इसमें दो, ये मोनोमर है, मोनो डाइमर मिलके दोनों बनते हैं, इसके जो यूनिट्स होते हैं. अब ये दोनों मोनोमर पे दोनों साइड में है ना, इसमें आके Janus kinase आके अटैच होता है, और दोनों जैसे ही अटैच होता है ये फॉस्फोराइलेट होता है. ओके, ये फॉस्फोराइलेट होता है जैसे Janus kinase, और जैसे Janus kinase एक्टिवेट होता है और फॉस्फोराइलेशन हुआ तो एक और काइनेजेस है, दैट इज कॉल्ड स्टैट काइनेज. इसलिए जैक स्टैट सिग्नलिंग कहते हैं, जैक स्टैट सिग्नलिंग पाथवे. स्टैट मीन्स स्टैट सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन, है ना. इसका फॉर्मूला इसका देख लेना. तो सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसलेशन लाइक. तो इस स्टैट जो काइनेजेस है, जैसे जैक काइनेज यहाँ पे रिक्रूट होता है, वो दूसरा एक और जो एंजाइम है स्टैट काइनेजेस उसको रिक्रूट करता है. ओके,
और स्टाइड काइनेज उसको फिर एक्टिव करता है, उसको फॉस्फोरिलेशन होता है। जैसे स्टाइड काइनेज एक्टिव होता है, इट गोज टू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में जाता है, ये डायरेक्टली एक्ट नहीं कर रही, इट गोज टू द न्यूक्लियस, ओके। और स्टाइड काइनेजेस अंदर जाकर जीन को, ट्रांसक्रिप्शन को ये भी एक्टिवेट करते हैं। So it is also acting through the gene expression, it modulates the gene expression. समझ में आ रहा है? So this is how it is acting. So we have learned about the different mechanism of action. Okay? Which one? This one? Calcium channel. तो आपको याद रखना है कि जो एक्शन हो रहा है डिफरेंट हार्मोन्स का, या तो आयन चैनल्स के थ्रू डायरेक्ट हो रहा है ना, लाइक डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स, समझ में आ रहा है? देन थ्रू द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, सेल के अंदर में जो रिसेप्टर हैं, जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे वो अंदर चले जाएंगे, उसके रिसेप्टर अंदर में होंगे, या तो साइटोप्लाज्म में होगा या न्यूक्लियस में होगा। साइटोप्लाज्म में मेजॉरिटी किसके होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स के, और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स थायराइड हार्मोन्स के होंगे, समझ में आ रहे? सो अल्टीमेटली व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू बाइंड टू द वेरी स्पेशल साइट ऑन द डीएनए दैट इज कॉल्ड हार्मोन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट। वहां पे जाके बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद वो एक्टिवेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। देन देयर विल बी ट्रांसलेशन प्रोसेस, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट प्रोटीन एंड द डिजायर्ड एक्शन विल बी देयर। Okay, then there is action through the formation of different second messengers. Second messenger में भी क्या है, कुछ जी प्रोटीन के थ्रू करते हैं और कुछ क्या है टायरोसिन काइनेज के थ्रू कर रहे हैं, है ना। अब जी प्रोटीन के थ्रू जो कर रहे हैं वो साइक्लिक एमपी को यूज कर रहे हैं, एडेनाइल साइक्लेज साइक्लिक एमपी पाथवे, देन ग्वानिलिन साइक्लेज साइक्लिक जीएमपी पाथवे, isn't it? Then there is inositol triphosphate IP3 डार्क सिस्टम, फॉस्फोलाइपेज सी को यूज करके कर रहे है ना। एंड दिस इज थ्रू द, ये क्या है आपका टायरोसिन काइनेज के थ्रू, इसमें जी प्रोटीन रिक्वायर्ड नहीं है, ओके। इसमें क्या ऑटो फॉस्फोरिलेशन साइट्स है, लेकिन ऑटो फॉस्फोरिलेशन साइट सिर्फ इसके लिए है, इंसुलिन के लिए, लाइक ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहां पे क्या है, ये डिपेंडेंट है, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे क्या होता है वो डिपेंडेंट होता है मदर पे, लाइक दैट। ये क्या है, यहाँ पे